Hmm. Hmm. Yes. Uh, See, ये सारे जो रिएक्शंस है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है. These are the key or major examples. Uh, this process is known as nitration. HNO3 and H2SO4 को एक साथ मिक्स करके I mean they are mixed together and then put on into benzene. तो इन दोनों के बीच का रिएक्शन जो होता है that produces HNO3 plus H2SO4 NO2 plus and remaining is H2SO4 with is HSO4 minus. और HNO3 जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह का दिखता है. HNO3 से H2SO4 जो होता है that is a strong acid. H2SO4 can liberate a H plus. H2SO4 gives out a H plus or dissociate into H plus and HSO4 minus. This H plus is accepted by this oxygen. It it adds on it and forms this protonated product.
This eventually breaks down to form NO2 plus. Now this NO2 plus, this step is step 1. This entire step is step 1, generation of electrophile. ठीक है? Then NO2 comes and interacts with the ring with its vacant orbital on nitrogen to form the intermediate, something like this. And this then eliminates, this is step 2, this portion. And then there is elimination of H plus in order to regenerate the aromatic ring with nitration product. Making sense? नाइट्रेशन के बाद फ्यूमिंग H2SO4 का जो रिएक्शन होता है, फ्यूमिंग का मतलब होता है H2SO4 which is dissolved with SO3. ये नाइट्रेशन नोट हो गया. हेलो, are we done हाँ with सर. nitration? हाँ. Okay. यहाँ पर एक्चुअली दिस इज नाइट्रेशन के बाद ये सेकंड जो होता है, दिस इज सल्फोनेशन. इसमें और भी हैं दो चार, दे आर नाइट्रोसेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, बट कुछ नहीं, उनको भी पढ़ेंगे. विल डू इट इन द प्रॉपर सेगमेंट जब हम एरोमेटिक कर रहे हैं. सल्फोनेशन में फ्यूमिंग मोड जो होता है, दैट मींस H2SO4 dissolved with SO3. ठीक है? That H2SO4 is termed as fuming H2SO4. और दूसरी चीज होती है, लाइक इंस्टेड ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, a very concentrated or even concentrated H2SO4 can do. Concentrated H2SO4 can have similar effect as fuming H2SO4. ठीक है? फर्दर आई मीन ये फ्यूमिंग H2SO4 जो होता है, इसको या तो फ्यूमिंग H2SO4 हम लिख सकते हैं, या फिर we have something called as H2S2O7. This is nothing but ये S S जुड़ गया, O 3 और 4 जुड़ के 7 हो. This is fuming H2SO4 only. Kind of fuming H2SO4 where this thing is not detached from H2SO4, rather they have, I mean, at molecular level they have some subtle interaction between these two molecules. ठीक है? लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल इंटरेक्शन रहता है इनके बीच में, so that's why they have this kind of molecular formula. In the end, whether it is this
और वेदर इट इज दिस, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली SO3 रहता है, ठीक है। और कॉन्क H2SO4 के केस में द सिस्टम जनरेट्स SO3। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? फ्यूमिंग H2SO4 के केस में वी हैव डिसॉल्व्ड SO3 एंड ये अगर नहीं होता है, आई मीन इन एब्सेंस ऑफ दिस, इफ दिस इज वी आर यूजिंग दिस थिंग, तो conc H2SO4 is able to generate SO3, basically self protonation। मैंने इसको ऐसे समझ सकते हो, SO3 प्लस H2O बनता है हमारा H2SO4, ठीक है। यही होता है ना रिएक्शन, फॉरवर्ड शिफ्टिंग रिएक्शन है ये मेजरली। सो वी यूज, मतलब बेसिकली इसका रिवर्स जो होता है, कॉन्क H2SO4 कैन come to this state. I mean, yeah, the equilibrium will be mostly forward favoring, but there will be some amount of SO3 which will be present in equilibrium with concentrated H2SO4 solution. concentrated के बदले अगर हम लोग dilute लेंगे तो the amount of this will be almost negligible, बट अगर आई मीन जितना ज्यादा हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, अमाउंट ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर, ठीक है। एंड H2SO4 से इसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है या जो एक्सप्लेन करते हैं हम, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल्स एसिड बेस रिएक्शन, टू स्टेप एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, और बेसिकली एक मॉलिक्यूल जो होता है एक मॉलिक्यूल जो है वो एसिड की तरह बिहेव करता है और दूसरा बेस की तरह बिहेव करता है, सेल्फ प्रोटोनेशन टाइप, ऑटो प्रोटोनेशन ऑफ वाटर की तरह। और ये एसिड का भी ऑटो प्रोटोनेशन होता है, एंड ऑटो प्रोटोनेटेड में एक मॉलिक्यूल एसिड और एक मॉलिक्यूल बेस की तरह बिहेव करता है, जैसे 4 माइनस एंड can have a H plus over here. This bond then breaks down to form this thing, S double bond O double bond O O and H with plus charge on sulfur, and then इसके पास जो दो lone pair है, that forms a back bonding, and back bonding के बाद the charge will come on O, S double bond O double bond O double bond O plus H, एंड देन पीसफुली H प्लस जो है वो डिपार्ट कर जाता है टू फॉर्म SO3। इन आइदर ऑफ द केस SO3 is the element
which is the active element. फ्यूमिंग H2SO4 या सल्फोनेशन प्रोसेस में द इलेक्ट्रोफाइल इज SO3. ठीक है. नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था हमारा? नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल वाज NO2 प्लस. सल्फोनेशन में द इलेक्ट्रोफाइल इज SO3. ठीक है. द SO3 then interacts with the ring through its vacant d orbital and form the final product. ठीक है. Noted till this point. Okay. The vacant d orbital of sulfur interacts with the ring and it forms this sort of intermediate, again HSO3 minus, and then instead of release or complete release of H2SO4, there is yeah, this H plus gets shifted actually from here to here. So intramolecular proton transfer. So we then have this final molecule again being formed, SO3H. तो सल्फोनेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है ये HSO3 एडेड, बट हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो होता है दैट इज SO3. ठीक है. अब बताया था कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है. ये वाला सिर्फ एक क्लौता रिएक्शन होता है जो कि एंड टू एंड रिवर्सिबल होता है, एंड जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है तो इसका डोमिनेंस होएगा प्रोडक्ट, मतलब दिस प्रोडक्ट विल बी डोमिनेंट फीचर. बट अगर हम लोग इसको डाइल्यूट कर लेते हैं यानी थोड़ा वाटर डालते हैं तो द बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम द फेवरेबल वन, एंड बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होता है तो ये अपने आप उड़ जाता है, H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेता है. ठीक है. दिस विल रिक्रिएट द बेंजीन रिंग. सो दैट इज वन थिंग अबाउट इट. एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इनका रिएक्शन जो होता है दैट क्रिएट्स इवेंचुअली CH3 CH2 plus, and this is a carbocation which can rearrange to CH2 CH3 plus. ठीक है. क्लोरीन के लोन पेयर एनहाइड्रस AlCl3 को डोनेट होते हैं एंड Cl comes out with AlCl3. This is a Lewis acid. AlCl3 is a Lewis acid,
and this intermediate, this carbocation intermediate is formed. बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का जनरल टाइप बता रहा था, तो मैंने ये बोला था आप लोगों को कि वी हैव एविडेंस दैट इलेक्ट्रोफाइल या तो मेनी अ टाइम्स ये कार्बोकैटायंस जनरेट भी कर देता है, और मेनी अ टाइम्स वो स्यूडो कार्बोकैटायन के फॉर्म में भी इंटरेक्शन कराता है, ठीक है, स्यूडो कार्बोकैटायन के फॉर्म में रिंग के साथ इंटरेक्शन करता है. नाउ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन, और इस चीज के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं कि यू हैव perfect generation of carbocations which are actually interacting with, as in there is a perfect generation of carbocation which works as a electrophile which then interacts with a which interacts with the ring. ठीक है, तो अगर परफेक्ट कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है तभी ये रीअरेंजमेंट वाली चीज हो सकती है. अगर परफेक्ट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है बाय चांस, तो सॉरी रीअरेंज प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, राइट ना. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेडल क्राफ्ट, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है. और दिस फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का जो ये प्रोसेस है, इसका अल्काइलेशन वर्ड पर ध्यान रखना. अल्काइलेशन एक दो बार और, एक बार कम से कम और करेंगे एरोमेटिक वाले में, सो नॉट मच टू वरी. अल्काइलेशन प्रोसेस जो है एनहाइड्राइड्स AlCl3 के साथ अल्काइल हैलाइड्स को इंटरेक्ट कराते हैं. इट प्रोसीड्स वाया जनरेशन ऑफ परफेक्ट कार्बोकैटायन, और परफेक्ट कार्बोकैटायन ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू रीअरेंज, एंड देयरफॉर कोई भी नॉर्मल अगर हम हलाइड्स लेते हैं तो भी हमको रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा. इंस्टेड ऑफ इससे हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि दिस शुड गिव अस प्रोबेबली दिस प्रोडक्ट, ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन. बट अनफॉर्चुनेटली हमको मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है इसमें वो मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरमीडिएट जो रिएक्ट कर रहा है दैट इज दिस इंटरमीडिएट, नॉट दिस इंटरमीडिएट. दिस इंटरमीडिएट बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल, ये फॉर्म होने की इमीडिएटली बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. मेकिंग सेंस. एंड देयरफॉर ये अल्काइलेशन रिएक्शन जो है ना फ्रेडल क्राफ्ट का, it was a good innovation to actually mix the aromatic system with aliphatic system. A first reaction of its kind to join aliphatic system with aromatic system. But eventually it lost its glory primarily because of rearrangement of this cations. ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए कुछ और बन जाएगा कुछ और, ठीक है, या फिर ऐसे बोलें कि ये वाला चीज हम इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, अल्काइलेशन प्रोसेस के थ्रू वी कैन नॉट मेक एट ऑल. द रीजन इज it will eventually the carbocation after getting, no matter what we do, but the moment the carbocation gets formed it will transform itself from 1 degree to 2 degree. ठीक है, या 2 डिग्री से 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है तो वो रीअरेंजमेंट कर लेगा.
इस चीज को ओवरकम करने के लिए दिस सेम पर्सन created another method that is known as Friedel-Crafts acylation. Acylation में basically what he does is uh, okay, wait, इसमें electrophiles वगैरह properly लिख देता हूँ. सर वो Cl के पहले CH2 आएगा ना, CH3 क्यों लिखा कहाँ पे? पहला स्टार्टिंग में? एक सेकेंड देख लेता हूँ. अच्छा, हाँ CH3 कैसे आएगा? थैंक यू फॉर करेक्शन देवान. Okay, CH3. So this is our electrophile, and this electrophile. Mm, yeah, these two will interact to form first this. And in step 3, this thing will get out to form sorry. ठीक है. अच्छा, इन सारे रिएक्शन में जैसे यहाँ पे पढ़ा हमने, इसको पढ़ा हमने, इन दोनों प्लेसेस पर क्या होगा कि ग्राफ हमारा कैसा रहेगा? The energy diagram or the energy profile is going to be exactly like the one which we studied over here, right? This is not going to be a what, rate determining step. This will have a lower activation energy. Am I making sense? अब इसका आफ्टर इफेक्ट या इस चीज को हमने समझा या जाना कैसे? तो सपोज यहाँ पर H निकल रहा हो या D यहाँ पर अटैच्ड हो और D निकल रहा हो, ठीक है? H निकले या D निकले, अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो दोनों ही केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा आना चाहिए दैट शुड बी सेम. अगर इस सेम स्पीसीज से यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन को अगर D से मैंने रिप्लेस कर दिया हो, ड्यूट्रियम,
should it impact my rate of reaction or not? What is our expectation? Hello. So Hi, if sir. in case of sulfonation process, the hydrogen of the ring is changed to deuterium, or it is a deuterated ring, in that scenario, the rate of reaction will become dependent whether it is a hydrogen based ring or is it a deuterated ring. अगर ड्यूट्रिएटेड रिंग रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी हायर होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम स्लोअर, मेकिंग सेंस, compared to when it is a hydrogen ring, hydrogen containing ring. बात समझ में आ रही है? सो बाकी किसी केस में प्रॉब्लम नहीं होएगा, बट इसके केस में या if it is a deuterated ring, it is going to have lower rate of reaction compared to a hydrogen containing ring. मेकिंग सेंस? बात समझ में आ रही है हम लोगों को ना? और यहाँ पर एसाइलेशन वाले, अल्काइलेशन वाले केस में रीअरेंजमेंट की वजह से हम लोग इसको यूज इवेंचुअली नहीं कर पाते हैं बहुत ब्रॉडली। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए he came out with an idea, instead of using alkyl halides he started using acyl halide, acyl halide, एसाइल हालाइड या फिर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो उसमें बेसिकली हमारे पास इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस रिएक्टेंट वी आर गोइंग टू टेक CH3 CH2 C double bond O and Cl. This is going to be mixed with anhydrous AlCl3, AlCl3. These two things are going to interact to form CH3 CH2 C triple bond O and plus. ये निकलता है एज अ लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आता है लोन पेयर की वजह, अरे सॉरी उल्टा बना दिया, ओके मेड अ मिस्टेक। Cl will break down eventually. सबसे पहला स्टेप ये होगा कि Cl अपने लोन पेयर देगा, Cl अपना लोन पेयर देता है AlCl3 को, ठीक है। So the first step is this, followed by second step, leading to generation of this ultimate thing, डबल बॉन्ड प्लस, और ये फाइनली फिर अपने आप को रीअरेंज करके कॉन्जुगेट या बैक बॉन्डिंग जो बोलना है, प्राइमरली कॉन्जुगेशन या बैक बॉन्डिंग है, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस बना लेता है, ठीक है। रिएक्टिंग साइट यही रहता है, दिस इज द रिएक्टिंग साइट जिस पर कि रिंग अटैच होएगा या रिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, यही वाला साइट इसका, एंड इट विल फॉर्म C double bond O CH2 CH3 एंड यहाँ पर एक H रहेगा, और ये H इवेंचुअली ब्रेक डाउन करके बाहर निकलता है, या रिलीज ऑफ डीप्रोटोनेशन प्रोसेस बोल लेते हैं हम लोग इसको, एंड दिस फॉर्म्स फाइनली दिस प्रोडक्ट। अब इसके बाद हमारे पास ये रहता है ऑप्शन कि वी कैन डू अ, ठीक है, बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन आ गया, और कीटोन का रिडक्शन करके हम लोग आसानी से अल्कीन्स बना सकते हैं। वी हैव
two reactions to टू नहीं, बहुत सारे हैं, दो आयनिक मैकेनिज्म से जाते हैं और बाकी हाइड्रोजनेशन जो होगा फ्री रेडिकल से मोस्टली मूव करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वुल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन, ये दोनों अल्केन्स के टाइम पर वी विल स्टडी। तो क्लेमेंसन रिडक्शन या फिर वुल्फ किस्नर, ये दोनों को यूज करके हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपना प्रोपाइल हैलाइड में, नॉर्मल प्रोपाइल हैलाइड में। ठीक है, सो इन शॉर्ट हुआ ये कि अल्काइलेशन के फेलियर के बाद भी द फ्रीडल क्राफ्ट प्रोसेस एज अ होल वाज केप्ट अलाइव विद द हेल्प ऑफ एसाइल हैलाइड्स। ठीक है, और कुछ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं एसाइल हैलाइड में AlCl3 के अलावा। प्राइमरली यही सेट रहता है, एल्यूमिनियम लेविस एसिड ही यूज करते हैं, कोई और लेविस एसिड भी यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन के सॉरी बोरॉन के भी कर सकते हैं हम लोग, कोई इश्यू नहीं है। एंड yeah, that is what takes place, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस वाले केस में क्या है कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। दिस कार्बोकैटायन कैन नॉट रीअरेंज, राइट, दिस कार्बोकैटायन और दिस कार्बोकैटायन, दिस कैन नॉट रीअरेंज। जिस साइट पर फॉर्मेशन हो रहा है उसका, उसी साइट पर वो रहेगा। तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड अगर कहीं पर भी बनाना है हमको, प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना, सेकेंडरी टर्सरी अगर बनाना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्काइलेशन से हम लोग कर सकते हैं। बट प्राइमरी सब्स्टिट्यूटेड जब भी हमको बनाना है तो हमारे लिए बेसिक मेथड क्या होगा, विल इट बी अल्काइलेशन और एसाइलेशन? इट विल बी एसाइलेशन, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अल्काइलेशन में वी आर गोइंग टू रीअरेंज प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, गटरमैन कोश के अंदर में बेसिकली CO इज आवर इलेक्ट्रोफाइल, CO acts as a electrophile। और यहाँ पर with some Lewis acid like AlCl3, this is there, यहाँ पे है, यहाँ पर भी रहेगा। The reaction basically proceeds something like the CO interacts with HCl and it forms a product like this। CO HCl के साथ, HCl के H के साथ इंटरेक्ट करता है और एक्चुअली CO जो होता है वो, उसमें होता कैसा है कि C is first double bonded with oxygen and then there is a back bonding donation to carbon and one of its lone pair remains like this. So this entire entity is what? Rich in, sorry, not this, but
rather I should be specific, this particular center is rich in electron density. Am I right? And this can easily attract a proton in its vicinity. यहां से ये प्रोटॉन को ले रहा है इस लोन पेयर की वजह से टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वी कैन से. अब इसका नेचर जो होगा लाइक यहाँ पर एक प्लस साइन रहेगा एंड दो लोन पेयर, या फिर बैक बॉन्डिंग फॉर्म में अगर हम इसको देखते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, HC ट्रिपल बॉन्ड O और O पर प्लस रहेगा विद अ लोन पेयर. ठीक है, ये इंटरेक्शंस जो भी करता है वो इस फॉर्म में करता है. यहाँ पर ये सेंटर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है. दिस सेंटर विल interact with the ring. C double bond OH H. प्लस एंड ये डीप्रोटोनेट होकर के फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा. और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद जो भी करना है आपका, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, इसको टोल्यून में कन्वर्ट करना है. जहां पे जो कन्वर्सन करनी है हमको वो कर सकते हैं. ठीक है. और this Gutterman reaction, it's almost same as this one, almost same as this one. ठीक है, यहाँ पर what happens is the electrophile generation H C triple bond N, this interacts with again H plus from HCl, from HCl. ये H plus किस साइट के साथ या किस एटम के साथ अटैच्ड होगा HCN के? तीन पॉसिबल एटम्स है, 1 2 3. किसके साथ H प्लस जाकर के अटैच होएगा? एनी गेस? हेलो Nitrogen. हेलो हेलो. Yes, sir. आई एम सेइंग H प्लस इन तीनों साइड्स में से मोस्ट प्रोबेबली नाइट्रोजन के साथ जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इट गेट्स एडेड अप एंड फॉर्म्स दिस पर्टिकुलर एंटिटी. ठीक है, सॉरी ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. ट्रिपल बॉन्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था. एंड दिस कैन resonate to form this very species, regenerating its lone pair. ये ट्रिपल बॉन्ड जो तीसरा वाला बॉन्ड था वो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के फॉर्म में जनरेट हो गया एंड कार्बन के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल आ गया. दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. ये वाला ज्यादा स्टेबल स्टेट है तो इस फॉर्म में ज्यादातर टाइम स्पेंड करेगा, बट इस फॉर्म में कुछ टाइम के लिए रहेगा. और इस फॉर्म में जिस टाइम के लिए रहेगा this will become strong electrophilic in nature and it can then combine with
ring HC double bond NH plus to form CH double bond NH and then eventually this will deprotonate. Deprotonate होने के बाद there will be this benzene ring CH double bond NH. Amine. This is imine, right? अमाइन के बदले ये इमाइन है एंड बेसिकली ये डबल बॉन्ड NH कहीं पे भी रहे या सिंगल बॉन्ड NH2 ये सारे हाइड्रोलाइज हो सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। ये वाली चीज जो होती है स्पेशली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, CN कहीं पर भी रहता है R के साथ या RCH डबल बॉन्ड NH इमाइन फॉर्म या फिर नाइट्राइल फॉर्म, ये दोनों अगर हम एसिडिक या बेसिक मीडियम डालते हैं H2O और H प्लस NH2O, एसिडिक मीडियम वाटर या फिर बेसिक मीडियम वाटर, इन दोनों के ऊपर it is immediately going to get hydrolyzed and they are going to generate depending upon what there is, like यहाँ पर डबल बॉन्ड है N के साथ तो this N is going to get replaced with O. इस वाले केस में it is always going to form, क्योंकि कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, it will just get attached with one oxygen, ठीक है। और इस केस में it is always going to form, imine is always going to form upon hydrolysis the aldehydes. Nitriles on other hand under similar conditions are going to generate HC double bond OOH, carboxylic acid, और इसकी वजह से ही नाइट्राइल्स को बेसिकली वी कॉल अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिख रहा है लेकिन स्टिल वी कॉल्ड नाइट्राइल। CN जो होता है उसको हम लोग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के अंदर ही उसकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शन या उसको खुद को स्टडी करते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रीजनरेट कर सकता है या कर पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड द मोमेंट वी हाइड्रोलाइज इट, ठीक है, आइदर इन एसिडिक और इन बेसिक मीडियम। Am I making sense? Yes, sir. ठीक है, that is Gattermann reaction. Then we have these two reactions, Reimer-Tiemann reaction and Kolbe's reaction, ठीक है। uh, these reactions takes place only on activated rings. They do not take place on normal rings और deactivated rings। अच्छा, ये वाले जो reactions होते हैं अगेन इस वाले केस में इफ यू आर लाइक थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान होगा तो CHCl3, अगर ध्यान नहीं है तो मैं ध्यान दिलाने के लिए इसको रीड्रॉ कर देता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH aqueous व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, यहाँ पर क्या बनना चाहिए? हम्म
3 क्लोरीन के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, कैन वी नाउ प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट? हेलो, सर कार्बीन फॉर्म होगा ना? क्या बोल रहे हो? हेलो, कार्बीन फॉर्म होगा ना? एक कार्बीन बनेगा, राइट, कार्बीन ही बनेगा। This H plus will get removed and CCl, Cl and Cl with minus sign will get generated। एक ऑर्बिटल जो कि वैकेंट हुआ उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आकर के -4 या रह करके -4, और ये इवेंचुअली 70 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से दिस breaks down to form something like this, Cl, Cl and vacant bond। ठीक है, अब ये इवेंचुअली हमारे रिंग पर आकर के दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इलेक्ट्रोफाइल देन अटैक्स ऑन द रिंग। ठीक है, और इसमें होता है स्पेशल चीज ये है कि ये जो है ऑर्बिटल वैकेंट होता है, राइट ना। और ये वैकेंट ऑर्बिटल बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करने के पहले, अच्छा एक और चीज इस प्रोसेस में रहती है, द सिस्टम इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक होने की वजह से ये फेनॉल जो है ये भी NaOH के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज फेयरली गुड एसिड अनलाइक अल्कोहल्स, और ये NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है और करता है। और बहुत ज्यादा फॉरवर्ड राइट नहीं रहता है, बट हाँ टू एक स्मॉल एक्सटेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन देता है, और फॉरवर्ड डायरेक्टेड प्रोडक्ट जो होता है वही ये राइमर टाइमन प्रोडक्ट्स देते हैं। इट्स नॉट दिस थिंग विच गिव्स द, इस फॉर्मेट में ये राइमन टाइमन नहीं देता है। इनफैक्ट दूसरा वाला जो फॉर्म होता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, दैट फॉर्म इज नथिंग बट ये H प्लस बेसिकली जो है लूज कर जाए यहाँ से, और ये निगेटिव कॉन्जुगेट बेस बन जाए। ठीक है, स्टेबलाइजेशन के लिए Na प्लस साथ में रह लेगा। नाउ दिस इज फेयरली एक्टिवेटेड रिंग। फेयरली एक्टिवेटेड क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर अभी अभी जनरेट हुआ, अनबॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटिंग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये फुल्ली अवेलेबल होगा रिंग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो रिंग जो हुआ हमारा, दैट पहले डेंसिटी थी रिंग के पास, बट अभी डेंसिटी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, इस सिनारियो में ये बहुत इजीली इस पर्टिकुलर कार्बीन के साथ इंटरेक्ट करता है। बट इस इंटरेक्शन में इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द इंटरेक्शन प्रोसीड्स विथ सम बायसनेस। बायसनेस क्या, क्यों, मतलब बायसनेस क्या है, क्यों बात कर रहा हूँ इसकी, इज समथिंग व्हिच आई शुड टेल। देखो, मैंने पहले आप लोगों को जब बता रहा था जनरल मैकेनिज्म, तो थोड़ा सा ये बताया था कि जनरली स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से फर्स्ट वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके बाद सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जो आता है, दैट
most of the time prefers to position itself at para position rather than ortho position, and the reason for it is steric, right? याद है? हाँ सर. ऑर्थो पैरा तो देता है मेजर प्रोडक्ट, बट अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा देगा ही देगा. कंस्ट्रेंट इज उसमें पैरा वाला जनरली डोमिनेंट होगा कंपेयर टू ऑर्थो और विथ इंक्रीज इन बल्क. ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, आई मीन इट्स नॉट वेरी बल्की, नाइदर दिस नॉर दिस, बट या डेफिनेटली मतलब होना ऐसा चाहिए कि द पैरा प्रोडक्ट have significant amount. It should not be that ortho can be a dominant product in any case. अगर स्टेरिक फैक्टर कहीं पर भी काम कर रहा है तो ऑर्थो बेसिकली हमारा नेचुरल डोमिनेंट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है. इट इज ऑलवेज पैरा विच इज गोइंग टू बी द नेचुरल डोमिनेंट प्रोडक्ट. ये बात हम लोग को समझ में आ रही है? Second substitution per, it is only the para product which should be the natural dominant product. If and if only steric factors are operating in our system. Are we getting this point? If some other sort of system, some other electronic factors are also operating, then there can be a shift from this behavior or tendency. But till the time this thing is true that there is just steric factor, the para product should always be the dominant product in second substitution. Right now, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो बल्क रहेगा, या फिर कुछ ये आ रहा है तो इसके पास भी बल्कलेस होगा, ऐसा तो होगा नहीं ना, कुछ ना कुछ तो बल्क रहेगा ना. और अगर बल्क है तो देयर विल बी अ इंटरेक्शन, देयर विल बी अ स्टेरिक रिस्ट्रिक्शन, and that steric restrictions pulls para to be a favorable position compared to ortho in absence of any electronic effect. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रहता है तो एक अलग सिनारियो जनरेट होता है, जैसे इस केस में होता है. ठीक है, होता है क्या है कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर एक्स्ट्रा वाले हैं दे आर फ्री, कोई काम नहीं है उनको. ठीक है, तो ये जब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर रहा होता है इस और इस और इस वाली जगह पे के क्लोज, ओरिएंटिंग इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल को ये फ्रीली अवेलेबल लोन पेयर और यू कैन से ज्यादा आसानी से मिल सकते हैं. इट गेट्स कैरिड अवे टुवर्ड्स इट. ठीक है, this vacant orbital gets carried away towards this. Getting the point? Because of this, the separation या distance between these centers and the vacant orbital will eventually be smaller compared to this. So under this biasness of influence of lone pair on the vacant orbital, this vacant orbital actually binds with the ortho positions rather than para positions. So पहला एक काइंड ऑफ सेकेंडरी बॉन्डिंग यहां पर क्रिएट होता है वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर के बीच में, और वो असिस्ट करता है यहां पर अटैचमेंट में इस कार्बीन के. दैट इज वेयर the ortho product becomes a dominant outcome of this particular reaction, Reimer-Tiemann reaction.
Reimer time in reaction. Is it okay? Rather than para, the ortho becomes the dominant product. ठीक है. और कॉलबेज के अंदर भी लगभग इसी तरह की चीजें होती हैं. डबल बॉन्ड हो रहता है. और ये वाला अगेन OH माइनस के प्रेजेंस में O माइनस हो गया होता है. लोन पेयर के इन्फ्लुएंस में ये कार्बन इसकी तरफ ड्रिफ्ट करता है और फिर यहां से ये इस पर शिफ्ट होता है. सो बेसिकली ऑक्सीजन के लोन पेयर के इन्फ्लुएंस या डायरेक्शन पे ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स come closer to ortho sites and react if it is not occupied. अगर ऑर्थो दोनों तरफ ब्लॉक्ड रहेगा तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. दिस विल इवेंचुअली कम टू पैरा पोजीशन. ठीक है. और उस केस में वो पैरा प्रोडक्ट्स देता है, कोई इश्यू नहीं होता है. लेकिन अगर ऑर्थो वैकेंट है तो फिर प्रेफरेबल अटैचमेंट जो होता है इन दोनों केसेस में, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन पैरा पोजीशन ओनली, सॉरी ऑर्थो पोजीशन ओनली. ठीक है. और एक छोटी सी चीज, ये सेकेंड सब्स्टिट्यूशंस जो भी होते हैं ना, दे प्राइमरली टेक प्लेस ऑन एक्टिवेटेड रिंग्स. ठीक है. सेकेंड सब्स्टिट्यूशंस ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन एक्टिवेटेड रिंग्स. ठीक है. डीएक्टिवेटेड रिंग अगर रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस तरह का कुछ रहता है NO2 और इस पे अगर हम एसाइलेशन, अल्काइलेशन या कोई भी रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं तो द आउटकम इज वी विल नॉट हैव एनी रिएक्शन. स्पेशली एसाइलेशन या अल्काइलेशन रिएक्शन जो है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या अल्काइलेशन रिएक्शंस दैट विल नॉट टेक प्लेस. ठीक है. एसाइलेशन, अल्काइलेशन कैन हैपन, I mean डाई सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या डाई सब्स्टिट्यूशन में अगर फ्रीडल क्राफ्ट हम यूज कर रहे हैं और डाई वाले सेकेंड वाले सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो द सब्स्टिट्यूशन कैन ओनली टेक प्लेस ऑन एक्टिवेटेड रिंग्स, नॉट ऑन डीएक्टिवेटेड रिंग्स. ठीक है. सेकेंड सब्स्टिट्यूशन using FCA can only take place on activated rings. ठीक है. अभी मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग. दिस इज एन एक्टिवेटेड रिंग, राइट, and I am having this thing in my pocket. I put it along with AlCl3 anhydrous. What product can I expect? Or should I expect something or not? नहीं बनेगा सर कुछ भी. हेलो.
Can I expect anything out of this or not? नहीं सर, क्यों? विनाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा। क्या हुआ? हेलो, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का नाम बताइए। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस इन आइदर ऑफ दीज केसेस। ये बॉन्ड्स जो होते हैं इनके अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। लेविस एसिड के साथ इंटरेक्ट करके ये कार्बोकटायन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, these कार्बोकटायंस आर नॉट पॉसिबल इफ वी रिमेम्बर। ठीक है, बनेगा नहीं, अनस्टेबल होता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। तो सिर्फ लेविस एसिड के डालने से ये फॉर्म नहीं हो पाएंगे। कार्बोकटायन जनरेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, ये भाई साहब लोग कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग ना, रिवीजन की जरूरत है हम लोगों को। सो उसको रिवाइज करते रहें। बेसिक पॉइंट्स, कार्बोकटायन कब बनेगा कब नहीं बनेगा, कहाँ पर कार्बोकटायन नहीं बनेगा, वो स्पेशली याद रखें और देखते रहें उस चीज को। तो कहीं पर भी कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो ये पहले निकालने, नुक्स निकालने की कोशिश करें कि क्या क्या नहीं हो सकता है या क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद क्या क्या हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, using FCA can only take place on activated rings, not on deactivated rings। ठीक है, लेविस एसिड जब भी हम यूज करते हैं, La, all the LAs must be used in anhydrous condition। anhydrous condition क्यों? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा मतलब एक्चुअली कुछ नहीं होगा। द रीजन इज, एनहाइड्रस काम कैसे करता है, सॉरी, ये लेविस एसिड का काम क्या होता है? बेसिकली एक वैकेंट ऑर्बिटल किसी एक एटम के पास लकीली बचा हुआ होता है, जिसको कि वो यूटिलाइज करता है किसी को हेल्प करने के लिए। ठीक है, जैसे AlCl3 है, इसका एक घर खाली है, तो इस घर से वो हेल्प करता है किसी और की। ठीक है ना? अब एनहाइड्रस के बदले अगर हाइड्रेटेड डाल लेते हैं या फिर थोड़ा सा वाटर अगर मॉइस्चर कंटेनिंग हो गया, तो बस होता ये है कि instead of having AlCl3 we will tend to have something like this, AlCl3H2O। ठीक है, ये बॉन्डेड रहेगा और एक प्लस चार्ज यहाँ पर रहेगा फॉर्मल।
ये OCl के साथ बॉन्डेड, OAl के साथ बॉन्डेड रहेगा. It is going to look rather than this we can write something like this, H2O and plus. ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस रहेगा. तो इस तरह का एक प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा जो हमारे किसी काम का नहीं है. ठीक है, निकम्मा है, नकारा है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये बेकार सी चीज है. ठीक है ना, तो बेकार सी चीज का कोई वैल्यू नहीं होता है, यूजलेस चीज होती है वो. So this entity will eventually become a useless entity, a perfectly useless entity. ठीक है, जिसका कोई काम नहीं होगा. Therefore anhydrous is must. Hydrous अगर थोड़ा सा भी हुआ hydration, so that is going to generate a फालतू का species which is useless, have no use in our reactions. Most of the reactions ये कुछ और रिएक्शन कर सकता है अपना, बट हमको जो चाहिए वो डेफिनेटली नहीं करता है, एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में कुछ नहीं करेगा. अगर यहाँ पर कोई और पहले से प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पर CN वगैरह अगर प्रेजेंट है, तो CN के साथ ये कुछ हरकत करना चालू करेगा. CN के साथ हरकत क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा हाइड्रोलिसिस करके. वो साइड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बट दैट कैन हैपन ओनली इन केस ऑफ CN, बाकी केसेस में नहीं हो सकता. सो वी जनरली से कि ये यूजलेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन विद द रिंग, एंड इट विल हैव नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट. सो बेसिकली AlCl3 जो एक्टिव कंपोनेंट था वो हो गया क्या, बेकार हो गया. द लेविस एसिड की जो टेंडेंसी थी, जो काम करना था उसको, वो कर नहीं पाएगा, करेगा ही नहीं. ठीक है, दीज आर सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है ना. लेट अस टॉक समथिंग अबाउट ये क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस. अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये पार्ट तो हो गया. इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट वाले पार्ट के एग्जांपल्स मैंने कुछ बताए थे कि नहीं, या बिल्कुल नहीं बताए थे. इसमें इलेक्ट्रोफिलिक वाले में, न्यूक्लियोफिलिक वाला मैंने रखा हुआ है, वो अभी तक नहीं बताया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस. और इसके बाद वाला सेट जब बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा. बेसिकली वो आपस में तो compete करते ही हैं SN1 SN2 फॉर्म में. तो अभी जब जो भी मैं एग्जांपल दूंगा उसमें प्राइमरली सिर्फ ये होएगा कि मैं SN1 या SN2 के ऊपर के एग्जांपल्स पिक करूंगा. बट रियल टाइम जो रिएक्शंस होते हैं ना, उसमें कंपटीशन जो उसमें होता है वो ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एलिमिनेशन हमेशा compete कर रहा होता है. तो जब तक मैं एलिमिनेशन नहीं पढ़ाता हूँ तब तक सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स जो होंगे दैट वोंट बी अ ट्रू एग्जाम्पल्स, इसलिए उसको होल्ड करके रखा है. इनमें ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, और सब्स्टिट्यूशन में ये बीच में है तो मतलब इनको पढ़ा देना. नहीं तो आइडियली अगर इनको स्कीप यहाँ पे करना होता तो फिर सब्स्टिट्यूशन वो न्यूक्लियोफिलिक के इमीडिएटली बाद एलिमिनेशन ही पढ़ाते हैं लोग. ये सारी चीजें स्किप ही मारते हैं. पर कोई नहीं, मेरे यहाँ पर पढ़ाने से मुझे फायदा ये होता है कि दूसरी बार जब मैं एरोमेटिक के टाइम पे पढ़ाऊंगा तब वहां पे प्राइमरली आपको पॉइंटर्स रिमाइंड करा करा के एंड क्वेश्चंस कराऊंगा. ठीक है, दैट इज व्हाट आई विल बी डूइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
इसका आउटकम हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या इस रिएक्शन का? जस्ट थिंकिंग लाइक, आप लोग सोचते हैं ये है क्या? NaNH2 क्या है? व्हाट इज दिस? नाम इसका सोडियम अमाइड होता है। इसका नेचर कैसा होता है? कैन वी प्रेडिक्ट दैट लुकिंग एट इट? What nature it might carry? Will it be a reducing agent? Will it be oxidizing agent? Will it be a acid? Will it be a base? Will it be a nucleophile? Will it be an electrophile? Will it be a nitrene? अच्छा, कार्बीन के तरह ही जब स्पीसीज सेंटर नाइट्रोजन के ऊपर क्रिएट होता है, कार्बन के ऊपर कार्बीन में क्या फीचर होता है? एक लोन पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल, बाकी ये बॉन्डेड। नाइट्रोजन में जब सेम कंडीशन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रीन। ठीक है ना? एक फील्ड ऑर्बिटल और एक वैकेंट ऑर्बिटल, और ये दो बॉन्डेड। सो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? NaNH2 क्या है? अभी तक किसी रिएक्शन में हम लोग NaNH2 को देखे हैं कहीं पर? सो दैट उसका नेचर हम लोग को पता है कि नहीं, ये मुझे पता चलता है। आप लोगों ने कहीं पर देखा है मेरे साथ पिछले 2 ढाई 3 महीने की ऑर्गेनिक के लेक्चर्स में कहीं पर भी NaNH2 का नाम? साइलेंस क्यों है? नहीं पता है आप लोगों को? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये सोडियम अमाइड जो होता है, सोडियम अमाइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम अमाइड हुआ, R माइनस हुआ इन फॉर्म ऑफ RMgX या RLi। So these are some of the strong bases of organic chemistry या overall chemistry। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ये तो इनऑर्गेनिक का भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस। और इसके अलावा जो बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, R4NOH होता है। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगा हम लोगों को क्या? हाँ सर। वेरी गुड। तो अब अगर हमें ये पता चल गया कि ये एक बेस है, तो बेस क्या काम करेगा? बेस क्या काम करेगा? हाँ, बेस का क्या काम होगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। वेरी गुड।
तो ए क्या स्पीसीज बनेगा? A जो होगा that will be an intermediate. We are talking about an intermediate called CH3. CH3, CH2, sorry, CH. It is CH2, oh sorry, not CH2, CH. CH minus CHO. ठीक है, यही वाला बनेगा, ये इंटरमीडिएट ए होगा हमारा, और फिर वो इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है. दिस विल बी पोलर प्लस एंड माइनस. सो ये बेसिकली इस सेंटर की तरफ आएगा और Cl डिस्प्लेस हो जाएगा. द फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CH3 CH, एक और CH3 C डबल बॉन्ड O और H. इज इट ओके? ठीक है. हेलो. हाँ सर. ओके, ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं. फ्रेडल क्राफ्ट वाला रिएक्शंस कल देखेंगे हम लोग, कल के दिन में सुबह में. ठीक है. बाय फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे. कोई आज कोई छुट्टी नहीं है ना बाय एनी चांस? जस्ट आस्किंग.